A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture. आज हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की. एक ऐसा सेगमेंट जो आपके सामने प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है. Along with this, we will also share some very important practice questions with you towards the end of the lecture. क्योंकि ये सभी प्रश्न आज के तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, आप अवश्य ही इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स आप लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी. तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 28 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1921 अर्थात वर्ष 1921 से, जब 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री पीवी नरसिम्हा राव वॉज बोर्न अर्थात आज के दिन भारत के नवे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था. उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पद पे कार्यभार संभाला था फ्रॉम 1991 to 1996. He was the first prime minister from the non-Hindi belt in India as well as the first person to hold this post from a southern state. वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक इन्फ्लुएंशियल स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया. He became the chief minister of Andhra Pradesh in 1971 and in that capacity he implemented land reforms and land sealing acts strictly in the state. बाद में उन्होंने कई सेंट्रल पोर्टफोलियो संभाले जैसे कि होम, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स इन द कैबिनेट्स ऑफ बोथ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी. जब वर्ष 1991 के दौरान चुनावों में कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें प्राप्त करी थी, then PV Narasimha Rao had the opportunity to lead the minority government as prime minister. He was the first person outside Nehru-Gandhi family to serve in the post of Prime Minister for 5 continuous years, as well as वह पहले प्रधानमंत्री बने थे from the state of Andhra Pradesh. He is often referred to as the father of Indian economic reforms, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान कई इकोनॉमिक चेंजेस भारत में किए गए थे. He had appointed Dr. Manmohan Singh as his finance minister, and this government introduced several prominent changes in India's economic realm, such as introducing the SEBI Act of 1992 and the Security Laws Amendment, which gave SEBI the legal authority to register and regulate all security market intermediaries. In 1992, India's equity markets were open to investment by foreign institutional investors. Apart from that, in 1994, the National Stock Exchange was also initiated. इस सरकार ने foreign direct investment को भी promote किया था in India by increasing the maximum limit on share of foreign capital in joint ventures from 40% to a high 51%. इसके अलावा in 1992 the controller of capital issues which decided the prices and number of shares that firms could issue was also abolished. Industrial licensing का system खत्म कर दिया गया with only 18 industries subject to licensing. यही नहीं, even on the front of foreign policy, his government is remembered for having introduced the Look East policy of India, जिसका उद्देश्य था to cultivate extensive economic and strategic relations with the nations of Southeast Asia. इसके कारण भारत
आसियान समूह के काफी करीब हो गया था। और आसियान के बारे में तो हम सभी जानते हैं दैट ऑफिशियली इट मींस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका गठन 1967 में हुआ with its headquarters in Jakarta. और अब talking about another important contribution of PV Narasimha's government, his government introduced the Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act अर्थात टाडा एक्ट, जो कि भारत का पहला एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन था। और इस संदर्भ में आप ये भी याद रखिए दैट अ वेरी फेमस बुक रिटन बाय हिम इज नोन एज द इनसाइडर। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये है संबंधित 1965 अर्थात वर्ष 1965 से, जब द फर्स्ट कमर्शियल कम्युनिकेशंस सैटेलाइट इंटेलसैट 1 was activated अर्थात आज के दिन पहला वाणिज्यिक संचार उपग्रह इंटेलसैट 1 सक्रिय किया गया था। इंटेलसैट 1 was first commercial communication satellite to be placed in the geosynchronous orbit और ये किया गया था 6 अप्रैल 1965 को। इस सैटेलाइट को एक और नाम से बुलाया जाता था which was early bird। इसको बनाया गया था by Boeing Satellite Systems for ComSat, जिसने इंटर्न इस सैटेलाइट को एक्टिवेट किया था on 28 जून 1965। ComSat का अर्थ है कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉर्पोरेशन, which is a global telecommunications company based in the US। मूल रूप से 18 महीने के लिए संचालित होने के लिए निर्धारित किए जाने वाला ये सैटेलाइट 4 साल और 4 महीने के लिए सक्रिय सेवा में रहा और अगस्त 1969 में इसे निष्क्रिय अर्थात डीएक्टिवेट कर दिया गया। The early bird satellite was the first to provide direct and nearly instant contact between Europe and North America, handling various forms of telecommunications, including television and telephone transmissions. Early bird was also one of the satellites used in the that time record-breaking broadcast of Our World, जो कि पहला लाइव इंटरनेशनल सैटेलाइट टेलीविजन प्रोडक्शन था और 25 जून 1967 को विश्व भर में कई देशों में ब्रॉडकास्ट हुआ था। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। ये है संबंधित 1972 वर्ष से, when pioneer Indian statistician प्रशांत चंद्र महालनोबिस had passed away अर्थात आज के दिन अग्रणीय भारतीय स्टैटिस्टिशियन प्रशांत चंद्र महालनोबिस का निधन हो गया था। पायनियर भारतीय स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस का निधन 78 वर्ष की आयु में कलकत्ता शहर में हुआ था। उन्होंने भारत में लार्ज स्केल सैंपल सर्वेस के डिजाइन में बेहद इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी थी और वर्ष 1920s के दौरान उन्होंने स्थापना करी थी A statistical laboratory in the Presidency College, जहां वह फिजिक्स पढ़ाते थे। इसके पश्चात he also established Indian Statistical Institute, which he established in Calcutta on 17th December 1931. वर्ष 1959 में the institute was declared a deemed university और उसी वर्ष इसे Institute of National Importance भी बनाया गया। He is mostly remembered for The Mahalanobis distance, जिसे डिनोट किया जाता है as D2। ये एक मल्टीवेरिएट डिस्टेंस मेजर है which has been used for comparing and grouping populations। इसके अलावा भी इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया था for measuring skull measurements। This was called profiloscope। He contributed tremendously towards the subject of physical anthropology in India और इनका एक जाना माना कंट्रीब्यूशन है in the field of large scale sample surveys। He initiated the concept of pilot surveys। The technique of random sampling introduced by him has been considered as most accurate in the world और इनकी रिसर्च ने improve किया the estimation of crop yields।
वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय योजना आयोग के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी थे। महालनोबिस एंड रशियन साइंटिस्ट ग्रेगरी फेल्डमैन ने स्वतंत्र रूप से एक नियो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल तैयार किया था, जिसे अब फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। इनके सभी कंट्रीब्यूशंस के कारण कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया, जैसे कि ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1924, वेल्डन मेमोरियल प्राइज, as well as Padma Vibhushan given by Indian government to him in 1968. इनके सम्मान में वर्ष 2006 में भारत सरकार ने डिसाइड किया टू ऑब्जर्व हिज बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 29 जून को पड़ती है, एज नेशनल स्टैटिस्टिकल डे इन इंडिया। और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं। यह है संबंधित 1976 से, व्हेन फेमस इंडियन शूटर जसपाल राणा वॉज बोर्न, अर्थात आज के दिन जाने माने भारतीय निशानेबाज जसपाल राणा का जन्म हुआ था। जसपाल राणा एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय शूटर है, जिनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। कुल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने 1988 में अहमदाबाद में आयोजित 31st नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत के अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी। But he grabbed first grand international attention at the 46th World Shooting Championship in the junior section with a world record score that was held in Milan in Italy during 1994. और इसी वर्ष में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था during Asian Games held in Hiroshima. He was also a recipient of gold medal in men's 25-meter center fire pistol with Samaresh Jung at the 2006 Commonwealth Games. इनके सभी contributions के कारण इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, which is India's second highest award for achievement in the field of sports. इसके अलावा he is also a recipient of Padma Shri Award. Presently, he provides training in shooting at the Jaspal Rana Institute of Education and Technology, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर में स्थित है। और अब आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। The very first question is, who was the first Prime Minister of India belonging to the state of Andhra Pradesh? अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शंस है ए एच.डी. देवगौड़ा, बी पी.वी. नरसिम्हा राव, सी चंद्रशेखर, और इज इट डी आई.के. गुजराल। विद दिस आज का अगला प्रश्न है, विच सैटेलाइट वाज आल्सो नोन एज अर्ली बर्ड सैटेलाइट, अर्थात किस उपग्रह को अर्ली बर्ड उपग्रह के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस है ए टेलीस्टार 1, बी सिनकॉम 3, सी इंटेलसैट 1, और इज इट डी इनसैट 1। और आज का तीसरा प्रश्न है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, अर्थात कहां स्थित है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के मुख्यालय? ऑप्शंस है ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, और इज इट डी दिल्ली। विद दिस द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हिच इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड गिवन इन इंडिया फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, अर्थात खेल के क्षेत्र में भारत में दूसरा सर्वोच्च सम्मान या पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शंस है ए ध्यानचंद अवार्ड, बी राजीव गांधी खेल रत्न, सी अर्जुन अवार्ड, और इज इट डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। आज का पांचवा प्रश्न है, विद विच स्पोर्ट इज जसपाल राणा एसोसिएटेड, अर्थात जसपाल राणा किस खेल से है संबंधित? ऑप्शंस है ए टेनिस, बी कबड्डी, सी शूटिंग, और इज इट डी स्विमिंग। With this, the last and sixth question for today's lecture is, where is the Jaspal Rana Institute of Education and Technology situated? अर्थात कहां स्थित है जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी? ऑप्शंस में कुछ शहरों के नाम हैं, जैसे कि ए चेन्नई, बी मैसूर, सी मुंबई, या डी देहरादून। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विद दिस, प्लीज स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।